We believe in a peaceful neighborhood and have been striving hard for this purpose. Afghanistan must understand that lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. افغان عبوری حکومت کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ عسکریت پسند گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ سرحد پار بھی امن کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملوں کا پاک فوج کی جانب سے ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا گیا۔ پاکستان پر حملے کی جسارت کرنے والے عناصر کو ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت میں تعاون پر برادر ملکوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس 2025 کی افتتاحی نشست سے خطاب۔ Unfortunately, earlier this year, in the month of May, Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Our highly professional armed forces displayed remarkable preparedness and performed outstandingly on the battlefield. Having won the war, we need to win peace through sincere and honest efforts. پاکستان نے ثابت کر دیا کہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ مئی میں مشرقی سرحد سے بلا اشتعال جارحیت کی گئی۔ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ پاکستان نے ہمیشہ مظلوم اقوام کی حمایت کی ہے۔ دنیا کے ہر فورم پر غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تمام اقوام کے عوام امن کے فروغ، پائیدار ترقی کے حصول اور اجتماعی سلامتی کے استحکام کے لیے متحد ہوں۔ امید کرتا ہوں کانفرنس کے دوران بامقصد گفتگو نئے راستے دکھائے گی اور مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اسلام آباد میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد کا خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 27 زخمی۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آور پولیس کی گاڑی کے قریب پہنچا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا سر اور دیگر اعضاء مل گئے۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے کی شدید مذمت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ دہشت گرد عناصر پاکستان کے امن و استحکام کے دشمن ہیں۔ بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جائے وقوع کا دورہ۔ فول پروف سیکیورٹی کی وجہ سے خودکش بمبار کچہری کے اندر نہیں پہنچ سکا۔ پہلی ترجیح میں خودکش حملہ آور کی شناخت کریں گے۔ ہمیں اندازہ ہے افغان طالبان رجیم کیا کر رہی ہے۔ وانا کیڈٹ کالج کے حملہ آور افغانستان سے ہدایات لیتے رہے۔ اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ کی میڈیا سے گفتگو۔ اسلام آباد خودکش دھماکہ، بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی ملی بھگت کھل کر سامنے آ گئی۔ دھماکہ سپہر 12:45 پر ہوا۔ افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سویرے سے باز کش سنائی دی جانے لگی۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک ایکس اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس دیکھے گئے۔ لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی گئیں۔ دھماکے سے قبل سوشل میڈیا پوسٹیں واضح ثبوت ہیں کہ افغان طالبان رجیم اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ افغان طالبان رجیم پاکستان میں کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث۔ Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists
they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad. वाना कैडेट कॉलेज पर फितनतुल खवारिश का नाकाम हमला, तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। बरवक्त कार्रवाई करते हुए फितनतुल खवारिज के शरपसंदों को हलाक किया। तलबा कैडेट कॉलेज की गुफ्तगू, आखिरी खारिजी को जहन्नुम हासिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा, सिक्योरिटी जराए। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर। वीडियो में वाज़े देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज गेट पर खुदकुश धमाका किया गया, जिससे कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खारिजियों को मौके पर ही जहन्नुम हासिल किया। मासूम कबायली बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना कबाइल से, ना पाकिस्तान की खुशहाली से, सिक्योरिटी जराए। چې په وانه کې کوم اٹیک شوی دی د دې مونږ برپور الفاظ کې مذمت کوو. داسې نه دي کول پکار. افغانستان نه چې کوم دهشتګرد راځي او دلته پاکستان کې زمونږ تعلیمي نظام چې کوم دی هغه خرابول کوشش کوي، یا زمونږ کلیجونو ته نقصان رسوي، یا زمونږ سکولونو ته چې کوم دی هغه نقصان رسوي. خو زه دا وایم چې ګوره د افغانستان چې څومره هم قبایل دلته راغلي دي یا آباد شوي دي یا خلک راځي، نو همیشه د دوی کار دا وي چې دوی په پاکستان کې کار مونږ ته ورانوي. پاک فوج مسله زبرست کروي وکړه او چې کوم دهشتګرد کیمه حمله وه هغه داسې حمله وه چې کومه اے پی اے سکول کوم پېښور باندې وکړه هغه دورا کوله، یعنی مطلب همیش تعلیم ته نقصان رسول. دفاع فوج می ډېر شکریہ ادا کوي چې د ټول سټوډنټ محفوظ کړل او دهشتګرد چې کومه هغه ولاته مقابله ختم کړل. افغان طالبان رجیم پختونوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتا ہے. مسلح افواج نے قبائلی علاقوں میں نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کیڈٹ کالج بنائے. پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے سینکڑوں طلباء کو ریسکیو کیا. معصوم جانوں کی حفاظت کو ممکن بنایا گیا. کیڈٹ کالج وانا کو بزدلانہ حملے کا نشانہ بنانے پر مقامی افراد کا شدید رد عمل. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس. جناح میڈیکل کمپلیکس کی جلد تکمیل میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایت. کمپلیکس کی تمام جدید طبی سہولتوں کے ساتھ معیاری تعلیم کو جامع حکمت عملی کے تحت مکمل کیا جائے. مقامی آبادی تک طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ذیلی طبی مرکز کی تعمیر کے لیے کام کیا جائے. وزیر اعظم کی جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر اور جدید علاج کی فراہمی میں ضرورت کے مطابق بین الاقوامی ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت. انسانیت کو درپیش چیلنجز، عالمی امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خطرہ. پاکستان علاقائی روابط بڑھانے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے شراکت داری مضبوط کرنے کے لیے پرعزم. مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے تمام شراکت داروں اور اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ دنیا کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے. مارگلہ ڈائیلاگ مستحکم، مساوی اور خوشحال مستقبل کی جانب تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں مددگار ہوگا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب. اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ، خطرے کی گھنٹی. ہم حالت جنگ میں ہیں. مسلح افواج کی جنگ افغان سرحد اور بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لڑ رہی ہے. افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کی کامیابی کی امید رکھنا ابس ہوگا. کابل رجیم پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی روک سکتا ہے. اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے. پاکستان بھرپور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان. برازیل میں کاپ 30 کانفرنس. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کے ہمراہ پاکستان پیویلین کا افتتاح کیا. انسانیت کی بقا دریاؤں، ہوا اور آسمان کی بقا سے منسلک. موسمیاتی تبدیلی کوئی پیش کوئی نہیں، زندہ جاوید حقیقت ہے.
حال ہی میں پنجاب نے خوفناک سیلاب کا سامنا کیا، ہم نے متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا۔ پنجاب نے نعرے نہیں لگائے، قابل عمل سسٹم وضع کیے۔ ستھرا پنجاب سے 1.5 لاکھ گرین ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ ماحول دوست ایندھن کے استعمال کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وسائل کی فراہمی کے بغیر موسمی بہتری کا دعویٰ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ اور 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کی 59 شقوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ خود مختار آئینی عدالت کی تجویز پر سب سے رائے لی گئی۔ آئینی عدالت کے قیام سے دیگر مقدمات جلد نمٹائے جا سکیں گے۔ عدالت کے از خود نوٹس کے اختیار پر بھی نظر ثانی کی گئی۔ ججز تبادلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا۔ قوم کے بہادر سپوت کو مشاورت کے بعد فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آرمی چیف ایک عہدہ ہے جبکہ فیلڈ مارشل ایک رینک ہے۔ 27ویں ترمیم میں طے کیا گیا فیلڈ مارشل کا اعزاز تاحیات رہے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسلام آباد میں 2 روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس، دنیا بھر سے 174 پارلیمانی وفود کی شرکت۔ امن، سلامتی اور ترقی کانفرنس کا موضوع۔ پارلیمانی سفارتکاری، مکالمے، مذاکرات اور تعاون پر مبنی ہے۔ بین الپارلیمانی کانفرنس سے پارلیمانی رابطوں کو فروغ ملے گا۔ امن، استحکام اور ترقی کے اہداف پورے کرنے میں پارلیمان کا کردار روز بروز بڑھ رہا ہے۔ قانون سازی، علاقائی تعاون، عالمی پالیسیز میں پارلیمان کی آواز کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی اسلام آباد کے H11 قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، احسن اقبال، طارق فضل چودھری، امیر مقام، مسلم لیگ نون کے کارکنوں، اساتذہ اور طلباء سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد کی شرکت۔ شرکاء کا مرحوم عرفان الحق صدیقی کی سیاسی، علمی اور صحافتی خدمات کو شاندار خراج عقیدت۔ عرفان صدیقی گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ پینتالیسویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ 2025 کی اختتامی تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاکستان آرمی نے 3ری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ پنجاب ریجمنٹ کی یونٹ فائرنگ مہارت میچ گروپ 1 میں پہلی پوزیشن۔ فیلڈ مارشل کی شرکاء سے ملاقات، شاندار کارکردگی کو سراہا۔ ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ تقریب میں بھی خصوصی شرکت۔ یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا، یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ بھارت میں فالز فلیگ کی پرانی چال، صفاق مودی سرکار کا نیا ڈرامہ ایک بار پھر ناکام۔ نئی دلی میں لال قلعے کے قریب میٹرو اسٹیشن پر دھماکہ، جائے وقوع پر نہ کوئی دھماکہ خیز مواد ملا اور نہ ہی زمین پھٹی۔ ابتدائی تحقیقات میں خودکش حملے کے امکانات مسترد۔ بھارتی پولیس نے خودکش دھماکے کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا اور انتخابی ڈرامہ مکمل طور پر بے نقاب۔ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار سنجیدہ سوالات اٹھانے لگے۔ پرانی پلے بک کے مطابق بھارتی فالز فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ نئی دلی دھماکے کو BBC سمیت تمام عالمی اداروں نے رپورٹ کیا۔ واقعے کے فوری بعد بھارتی میڈیا نے منظم انداز میں گمراہ کن پروپیگنڈا مہم کا آغاز کر دیا۔ وقت کے ساتھ پولیس کے بیانات بھی تنازعات سامنے آنے لگے۔ 3 اکتوبر کو بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز بیانات دیے۔ بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں اور بہار کے انتخابات میں کمزور سیاسی پوزیشن سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک نئی مہم چلا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل تیسرے روز بھی بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ جاری۔ قابض بھارتی فورسز نے 1500 سے زائد بے گناہ کشمیری گرفتار کر لیے۔ نئی دلی میں دھماکے کے الزام میں بھی 4 کشمیری حراست میں لے لیے گئے۔ حریت رہنماؤں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور بھارتی ظالمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔
जंग बंदी माहिदे के बावजूद इसराइल की गजा में फजाई और जमीनी कार्रवाई, 2 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। इसराइली मुहासरे के बायस इमदादी सामान की तरसील में मुश्किलात, खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। इसराइली फजाइया की जनूबी लबनान में भी मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। Goes full again. Now that has to be close. That's the intent. रावलपिंडी में पहला वनडे मैच, पाकिस्तान का श्रीलंका को 300 रन्स का हदफ। सलमान अली आगा के नाकाबिले शिकस्त 105 और हुसैन तलत के 62 रन्स। मोहम्मद अवाज ने नॉट आउट 36 रन स्कोर किए। श्रीलंका के हसरंगा की 3 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। श्रीलंका क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। अमन और इस्तेहकाम के साथ साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों का फरोग हमारा मुश्तरका मकसद है, मोहसिन नकवी। और जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली में आलूदगी से परेशान। सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड कर दी। शुक्र है साउथ गोवा में रहता हूं, दिल्ली में तो बच्चों से कहा जाता है कि घर के अंदर ही रहें। जॉन्टी रोड्स। और रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स, पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने 2 तमगे जीत लिए। खवातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने कांसी का तमगा हासिल किया। 55 किलोग्राम कैटेगरी में कुदरतुल्लाह ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब। बुलेटिन के आगाज में पहली और अहम खबर यह है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर शदीद अफसोस का दुख का इजहार और इन वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दोनों कायदीन का इस अज़्म का इरादा कि गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। इस मुलाकात में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, विफाकी वज़रा सैयद मोहसिन रजा नकवी, चौधरी सालिक हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, खालिद हुसैन मक्सी और अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। ऐवान सदर में मुलाकात हुई है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की, और इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर अफसोस का इजहार और वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दोनों कायदीन ने इस अज़्म का एक बार फिर इरादा किया कि गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। इस मुलाकात के दौरान चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, विफाकी वज़रा सैयद मोहसिन नकवी, चौधरी सालिक हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, खालिद हुसैन मक्सी और अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। दुनिया बदल रही है, लेकिन इंसानियत के सामने चैलेंजेस वही हैं, जंग, गुर्बत, नाइंसाफी और तक़सीम। ऐसे में एक विजन उभरा,
क़यादत का, मुकालमे का और इज्तिमाई अमल का। अप्रैल 2025 सियोल, जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में एक नया आलमी फोरम तश्कील पाया, इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जो पार्लिमानी सिफारतकारी को एक नया रुख दे रहा है। और अब पाकिस्तान मेजबान है इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इस्लामाबाद का 10 से 12 नवंबर, जिसमें 45 मुमालिक के 100 से ज्यादा स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स और वफूद शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान को फख्र है कि वो आलमी रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इस इज्तिमाई अज़्म की अलामत होगा जो पार्लिमानों को एक बेहतर, मुनसिफाना और पायदार दुनिया की तामीर में मुत्तहिद करेगा। पार्लिमानी सिफारतकारी अमन, सलामती और जामे तरक्की की ज़ामिन। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और अब बढ़ते हैं तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। अफगान उबूरी हुकूमत कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म के खिताब की तफसील शेयर कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लिमान अवामी उमंगों की तर्जुमान और मुंतखब नुमाइंदे अवाम के एतमाद के अमीन होते हैं। अमन के फरोग, पायदार तरक्की और इज्तिमाई सलामती के लिए मिलकर इक़दामात करना वक्त की जरूरत है। We are guardians of the most precious hope and sacred trust that our people have reposed in us. My ultimate hope is that the peoples of all nations will stand united in promoting peace, advancing sustainable development and strengthening collective security. वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए अमन की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मई में दुश्मन ने जब पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की तो हमारी बहादुर अफवाज ने वाज़े कर दिया कि अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। Our highly professional armed forces displayed remarkable preparedness and performed outstandingly on the battlefield. Their swift and decisive military action, but also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve and determination to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है। पायदार तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हाथों अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोका जाए। A peaceful Afghanistan holds the key to regional connectivity. We believe in a peaceful neighborhood. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को हकीकत का रूप देने में चेयरमैन सेनेट और फोरम के बानी चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की काविशों को सराहा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपने खिताब में कहा कि कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन, सलामती और तरक्की वक्त की जरूरत है। We stand united not only by geography but by shared vision of commitment to peace, security and inclusive development. We are drivers of trust, builders of consensus, voices for the people when the world grows uncertain. Let us lead with unity, with vision and with courage.
सेक्रेटरी जनरल ISC और दीगर मुकर्रीन ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि पार्लिमानी सिफारतकारी में मुज़ाकरात और ताउन बुनियादी सतून हैं। मुकर्रीन ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मौका फराहम करता है कि एक ऐसा मुस्तकबिल तश्कील दिया जाए जो पायदार अमन और इंसानी तरक्की पर मबनी हो। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में फितनुल खवारिज का बुज़दिलाना फेल। G11 कचहरी के बाहर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि यह हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान रजीम की प्रॉक्सी तंजीम फितनतुल खवारिज की कार्रवाई थी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकश हमला आवर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, जबकि खुदकश हमला आवर के एजा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। जाए वकुआ से मुबैना खुदकश हमला आवर का सर भी मिल गया है। G11 जिला कचहरी का ये है वो मकाम और वो मेन दरवाज़ा जहाँ पर दिन 12:39 पर खुदकश एक मुबैना खुदकश बमबार ने दाखिल होने की कोशिश की और फुल प्रूफ सिक्योरिटी होने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर खुदकश बमबार इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर साइलिन जो है वो हज़ारों की तादाद में आते हैं और ये इसलिए मुमकिन ना हो सका क्योंकि उसको अंदर जाने का मौका ना मिल सका और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको अंदर जाने से रोका। और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर उस मुबैना खुदकश बमबार ने अपने आप को धमाके से बाहर ही उड़ा लिया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। IG इस्लामाबाद, रेंजर्स, हुकाम, जिली इंतजामिया और फोरेंसिक टीमें फौरी तौर पर धमाके की जगह पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मौके पर पहुंचकर जाए हादसा का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हमारी पहली तरजीह खुदकश हमलावर की शिनाख्त करना है। धमाके में जो भी मुलव्वस हुआ उसको नताइज भुगतना होंगे। CCTV फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहे और देखता रहे मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ। तो आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका, तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफ़गानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर खुराक राना तनवीर समेत विफाकी काबीना के दूसरे वज़रा अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं ने धमाके की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पेम्स अस्पताल में जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके में जख्मी होने वाले शहरियों का दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक है। जब तक कलमा ला इलाहा पढ़ने वाले इस मुल्क में जिंदा हैं, पाकिस्तान हमेशा फतहयाब रहेगा। अपना पाकिस्तान है, हमें अपने पाकिस्तान में अमन चाहिए। हम ये बगारत को पैगाम दे देते हैं कि इसको बाज आ जाए, ये काम शामी नहीं करवाएंगे मेरे मुल्क में। इस हमले की मजम्मत करते हैं। एकदम धमाका हुआ और बंदा भी एक उड्डा बीच में था। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ भी खिलाया है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पनाह भी ਦਿੱਤੀ है, वो भी ਸਾਡੇ दुश्मन ने। तमाम मुसलमान जो है वो आपस में मुत्तहिद हो के इस दुश्मन के नसूर को ख़त्म करें। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, वो ठीक तो नहीं कर रहे हैं ना सर। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान है, इसका ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया के साथ हमारा मसला हुआ है तो इंडिया ने क्या किया? हमारा कुछ भी नहीं किया है। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला पाकिस्तानी जिंदा रहेगा ना, तो पाकिस्तान इनसे जीतता रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ दानिशवर सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम के बड़े बेटे इमरान सिद्दीकी और दीगर अहल खाना से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ दानिश्वर सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्ला तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मरहूम की सियासत और मुल्क के लिए मजमूई खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्ला तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मरहूम की सियासत और मुल्क के लिए मजमूई खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे जिन्होंने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ पर गहरा निशान छोड़ा। वज़ीर आज़म सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफा का पैकर और पाकिस्तान की फ़िक्री और सहाफ़ती उफ़क़ पर एक दरख्शां सितारा थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के क़ायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी के देरीना साथी थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ उनका इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता था। वो इंतहाई शफ़ीक़ इंसान थे। इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और महज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र और हौसले की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ दानिश्वर सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहूम के बड़े बेटे इमरान सिद्दीकी और दीगर अहले खाना से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने मरहूम की सियासत और मुल्क के लिए उनकी मजमूई खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे जिन्होंने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफा का पैकर और पाकिस्तान के फ़िक्री और सहाफ़ती उफ़क़ पर एक दरख्शां सितारा थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के क़ायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी के देरीना साथी थे। मेरे साथ उनका इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता था और वो एक इंतहाई शफ़ीक़ इंसान थे। खबरों का सिलसिला जारी है। आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दुनिया बदल रही है लेकिन इंसानियत के सामने चैलेंजेस वही हैं। जंग, गुर्बत, नाइंसाफी और तक़सीम। ऐसे में एक विजन उभरा, क़यादत का, मुकालमे का और इज्तिमाई अमल का। अप्रैल 2025 सियोल जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में एक नया आलमी फोरम तश्कील पाया, इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जो पार्लिमानी सिफारतकारी को एक नया रुख दे रहा है। और अब पाकिस्तान मेजबान है इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इस्लामाबाद का 10 से 12 नवंबर, जिसमें 45 मुमालिक के 100 से जायद स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स और वफूद शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान को फख्र है कि वो आलमी रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इस इज्तिमाई अज़्म की अलामत होगा जो पार्लिमानों को एक बेहतर, मुनसिफाना और पायदार दुनिया की तामीर में मुत्तहिद करेगा। पार्लिमानी सिफारतकारी अमन, सलामती और जामे तरक्की की ज़ामिन। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। धमाका लगभग सपहर 12:45 पर हुआ, जबकि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़ सुनाई दी गई। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। इसी तरह के धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी देखे गए थे, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गईं। अफगान ट्विटर हैंडल आमाज न्यूज़ ने 2 नवंबर को ट्वीट में इन धमकी आमेज पैगामात को पोस्ट भी किया।
तालिबान के एक और एक्स अकाउंट खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाली ट्वीट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अफगान रजीम के घिनौने अज़ाइम की अक्कासी करती है। धमाके से कबल अफगानिस्तान से की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स इस अम्र का वाज़ेह सबूत हैं कि अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ये रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। इस्लामाबाद और दिल्ली में होने वाले धमाके दोनों पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। एक और अहम खबर यह है कि कैडेट कॉलेज वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और तमाम 650 तलबा और असातिज़ा बहिफाजत रेस्क्यू करके फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में दहशतगर्दों ने एक बार फिर मासूम बच्चों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। अफगान सरजमीन से आने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना की मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, जिससे गेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने मौके पर ही बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। धमाके के बाद 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर दाखिल हुए, जिन्हें फोर्सेज ने घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों को एक अलहदा इमारत तक महदूद कर दिया गया है, जहां से वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से मुसलसल राबिते में हैं। हमले के वक्त कॉलेज में 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दहशतगर्दों का सामना हुआ था, कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। मैं वाना कैडेट कॉलेज में 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। 5 बजे दहशतगर्दों की तरफ से वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया, जिसमें हमारी पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन का कहना है कि हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन ये जालिम खवारिज मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना था कि इन दहशतगर्दों का ना दीन के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही इंसानियत के साथ। हम सब कबाइल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इनको हर सूरत अपने इलाकों से बेदखल करेंगे। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा ताकि वो पढ़ लिख कर हमारे इलाके का नाम रोशन करे, लेकिन इन जालिमों ने इन मासूम को भी नहीं बख्शा। ये ख्वारिज ना हमारे दीन के नुमाइंदे है ना इंसानियत का, ये सिर्फ तबाही चाहता है। हम वजीर मसूद सब एक है और पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये ख्वारिज हमारे दीन के नुमाइंदे नहीं है न इंसानियत के, ये सिर्फ तबाही मचाते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी का ये हमला भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज ने किया है, जो अफगानिस्तान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन पूरे अज़्म और हौसले के साथ जारी रहेगा। मासूम कबायली बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्द ना इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं ना पाकिस्तान से। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कैडेट कॉलेज वाना में तालीम हासिल करने वाले तलबा को फितना अल खवारिज की जानिब से बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाने पर मकामी अफराद ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया। चुपवाने का कुम अटैक शवे दे दिमुंग भरपूर अल्फाज के मजम्मत का उदास नदी कॉल पकार अफगानिस्तान ने जुकुम दहशतगर्द राजी है उदलता पाकिस्तान के जमुंगा तालीमी निज़ाम जुकुम दे आखर बल कोशिश कवी या जमुंगा कलिजुनो त नुकसान रसवी या जमुंगा स्कूलों त जुकुम दे आगा नुकसान रसवी न दास नदी कॉल पकार पाक फौज त पकार दी दूत जुकुम दे खट ठीक ठाक जुकुम दे जवाब वर की अफगानिस्तान च सोमर हम कबाइल दल तरागली दी या बदशवी दी या हलक राजी तो हमेशा द दोई कार दावी च दोई पाकिस्तान के कार मुंग त उरानवी दो हलको त मुंगा सो काला जय वर को पदे मुल्क में पालल जय मोर को और वलय बांधे और ब्या हम चरत हम पाकिस्तान के शर व फसाद भी पागे के दो मुलविस भी। मकामी अफराद ने कहा कि इस हमले की कोशिश से वाज़ेह हो गया कि दुश्मन वाना और कबायली अवाम को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में मुतल्लिका वजारतों और इदारों के दरमियान मरबूत ताउन यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स जदीद तिब्बी सहूलतों के साथ मुकम्मल किया जाए और इसकी तकमील के लिए जामे हिकमत अमली तैयार की जाए। उन्होंने मकामी आबादी को सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए JMC के तहत झेली तिब्बी मराकज़ तामीर करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद इलाज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ज़रूरत के मुताबिक हासिल की जाएँ। इजलास में
वज़ीर आज़म को मंसूबे की अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मतलूबा ज़मीन हासिल कर ली गई है और डिज़ाइन कंसल्टेंट का इंतखाब भी मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2025 का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए माहिरीन, पॉलिसी साज और सफारतकारों ने आलमी चैलेंजेस, मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। तफसील हुसैन रजा से। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आलमी ताउन और निफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कसीरल जहती इदारों को मजबूत करना ज़रूरी है। Humanity is facing unprecedented challenges that threaten to disrupt global peace, security and development. Global and even domestic economic inequalities are deepening owing to the inherent deficiencies in the global financial architecture. Debt distress has overtaken more than 100 countries, negatively impacting the achievement of the Sustainable Development Goals, which the UN has been eyeing for years now. We are determined to enhance regional connectivity and increase bilateral and multilateral development partners for socio-economic uplift. मार्गला डायलॉग के पहले फोरम के मौका पर शुरका ने पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। उनका कहना था कि इस नोयत के मुकालमे मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एतमाद साजी, पॉलिसी हम आहंगी और मुश्तरका तरक्की के लिए नई राहें खोलते हैं। I listen to new ideas, new thoughts. Pakistan seems to be at the center of many important processes. The new American administration considers Pakistan an important country. That is very obvious. Climate change and investment in green energy, the energy transition, I think the news from the last 2 years are very encouraging that Pakistan is really moving ahead in that process. पाकिस्तान ने बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया है और वो करता आएगा। तो इस किस्म के डायलॉग्स में जियो पॉलिटिकल थ्रेट्स, पाकिस्तान का किरदार आलमी सतह पर, रीजनल सतह पर, उसका हम इहाता करते हैं। Always maintain stability at home, keeping peace with its neighbors and in the world, and treating development as the heart. Only through development can Pakistan really achieve decency and dignity and better living standards for the Pakistani people. ये फोरम न सिर्फ आलमी मसाइल पर बहस व मुबाहिसे का मौका फराहम करता है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ मुस्तकबिल की सलामती और तरक्की के लिए ठोस फैसले किए जा सकते हैं। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वज़ीर कानून ने कहा कि आईनी अदालत कायम करने का फैसला हुआ है, जिसमें तमाम सूबों और वफाक को नुमाइंदगी दी गई है। तफसील जानते हैं डॉक्टर उमर फारूक से। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के अहम नकात से आगाह करते हुए वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वफाकी आईनी अदालत कायम करने का फैसला हुआ है। तवक्को है कि इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरे मुकदमात बर वक्त निपटाने का वक्त मैसर आ सकेगा। फेडरेटिंग यूनिट्स की वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, बराबर नुमाइंदगी, और जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी एक आईनी अदालत है, उसको भी नुमाइंदगी दी गई है। उसमें एक तासुर ये दिया गया कि शायद 184(3) को, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, उसको उसी सूरत में वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया है, और वो जो प्रोविजन थी उसकी पैरामीटेरिया प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है आर्टिकल 175B के बाद, जो उसके जुरिस्डिक्शन के हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि माजी में जजेस की जानिब से सोमोटो के इख्तियारात का इस्तेमाल इंतजामिया के खिलाफ बिला जवाज किया जाता रहा है। अदलिया के इस इख्तियार पर भी आईनी तरमीम में नजरसानी की गई है। जो सुओमोटो का इख्तियार है आईनी अदालत का, वो सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसे ख़त्म किया गया है। एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर दरख्वास्त आए, कोर्ट सेटिस्फाई करे कि ये जो क्राइटेरिया है 184(3) में, कि यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हो मसला सामने आपके, और उसके साथ साथ
وہ عوامی پبلک امپورٹنس کا بھی میٹر ہو, کسی فرد واحد کو گرل کرنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا. وزیر قانون نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی. قوم کے بہادر سپوت کو مشاورت کے بعد فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا گیا. ضروری سمجھا گیا کہ فیلڈ مارشل کے رینک کو قانونی دائرہ کار میں لایا جائے. آرٹیکل 243 میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر آپ اپنے قومی ہیروز کو اس طرح کے ٹائٹل سے فیلڈ مارشل یا مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دا فلیٹ بناتے ہیں تو پھر یہ اعزاز کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ واپس لے رہا ہے. یہ تاحیات ہے. اگر ویلڈ گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وڈرا ہونا چاہیے تو یہ استحقاق پارلیمان کو دیا گیا ہے. وہ جوائنٹ سٹنگ میں ووٹ کے ذریعے بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ صدر کے عہدے کو تا حیات استثناء دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تاہم اگر صدر ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ عوامی عہدے پر براجمان ہوتے ہیں تو یہ استثناء ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر عمر ملک, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. عمر ملک کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. مزید خبریں ایک مختصر بریک کے بعد. دنیا بدل رہی ہے لیکن انسانیت کے سامنے چیلنجز وہی ہیں. جنگ, غربت, ناانصافی اور تقسیم. ایسے میں ایک ویژن ابھرا, قیادت کا, مکالمے کا اور اجتماعی عمل کا. اپریل 2025 سیول جناب سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں ایک نیا عالمی فورم تشکیل پایا, انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس, جو پارلیمانی سفارتکاری کو ایک نیا رخ دے رہا ہے. اور اب پاکستان میزبان ہے انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس 2025 اسلام آباد کا 10 تا 12 نومبر, جس میں 45 ممالک کے 100 سے زائد اسپیکر, پریزائڈنگ آفیسرز, ڈپلومیٹس اور وفود شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کو فخر ہے کہ وہ عالمی رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے. اسلام آباد ڈکلریشن اس اجتماعی عزم کی علامت ہوگا جو پارلیمانوں کو ایک بہتر, منصفانہ اور پائیدار دنیا کی تعمیر میں متحد کرے گا. پارلیمانی سفارتکاری امن, سلامتی اور جامع ترقی کی ضامن. درست, ہر وقت, بر وقت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. برازیل کاپ 30 کانفرنس کے موقع پر پاکستان پویلین کی افتتاحی تقریب سے ان کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں وسیم سجاد سے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے برازیل میں ہونے والی کاپ کانفرنس میں پاکستان پویلین کا افتتاح کیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا اور 26 لاکھ سیلاب متاثرین کو ریسکیو کیا گیا. More than 2.6 million people and over 2.1 million animals were safely evacuated in one of the largest rescue operations in the history of Pakistan. And within weeks, the fastest digital damage survey ever conducted in South Asia was completed. And by the end of that same month, relief checks were reaching victims digitally, transparently and with dignity. کانفرنس کے دوران ایک اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب نے ایئر کوالٹی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں جبکہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لا رہے ہیں. From data in the sky to machines in the soil, Punjab's green revolution has become a living story of change. Within 1 year, we cut stubble burning by 65%, according to SUPACO, replacing smoke with innovation and introducing for the first ever time 5,000 superseeders, expanding to 15,000 balers and mechanized harvesters through interest-free green loans worth billions. In agriculture, climate-smart farming
is replacing the cycle of burning and blame. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब का ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम हमारी कारकर्दगी की मिसाल है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इनकलाबी इक़दाम शुरू किया गया है, जिसके तहत हर गली, कूचे और मोहल्ले में सफाई सुथराई यकीनी बनाई जा रही है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने 1500 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। KMS के मुताबिक काबिज फौज ने मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 3 दिन में बड़े पैमाने पर जारी पकड़ दकड़ की कार्रवाइयों के दौरान ख़वातीन, डॉक्टर्स और आज़ादी पसंद कारकुनों समेत 1500 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस एहलकारों ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां की, घरों पर छापे मारे और अमलाक को जब्त किया। इन कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद कश्मीरी नौजवानों, हुर्रियत पसंदों और आम शहरियों को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार करना था। भारतीय हुकाम ने नई दिल्ली में भी लाल किले के करीब धमाके के इल्जाम में 4 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर हुर्रियत रहनुमाओं ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इन जालिमाना कार्रवाइयों का मकसद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमजोर करना है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह जबरी गिरफ्तारियों और बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करें। दूसरी जानिब बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की उम्र कैद की सजाए मौत में तब्दीली की अपनी दरख्वास्त पर इन कैमरा समात की इस्तदा की। अदालत ने मुकदमे की समात 28 जनवरी 2026 तक मुलतवी कर दी। यासीन मलिक तिहाड़ जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और अपने खिलाफ दायर मुकदमे की समात में ताखीर को नफ्सियाती अजियत करार दिया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि सुबह और रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में 300 रन का हदफ दिया है। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग जारी है और मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 299 रन बनाए। साइम अयूब 6 और फखर जमान 32 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 5 और बाबर आजम ने 29 रन स्कोर किए। 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने 138 रन की शराकत कायम की। हुसैन तलत ने 1 छक्का और 6 चौके लगाते हुए 62 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी बनाते हुए 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने 9 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका के वानिंदो हासारंगा ने 3 विकेटें हासिल की। विफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम के साथ साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों का फरोग हमारा मुश्तरका मकसद है। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने 2 तमगे जीत लिए। रियाद में जारी मुकाबलों में फातिमा ज़हरा ने 60 किलोग्राम और सिपाही कुदरतुल्लाह ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी दिखाई। दोनों बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की और कांसी के तमगे हासिल किए। जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी से परेशान हो गए। जॉन्टी रोड्स ने सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड की और लिखा कि शुक्र है वो साउथ गोवा में रहते हैं जहां इनके बच्चे बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, जबकि दिल्ली में बच्चों से कहा जाता है कि अंदर ही रहें। स्पोर्ट्स न्यूज़ आपने मुलाहिजा की। नाजिया खान और ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।